our Vice President of the college, Mr. Manoj Kumar sir, Secretary, Mr. Mitlesh sir, and Principal of Gautam Buddha Teachers Training College, Dr. Basundhara ma'am. Apart from this, I would like to thank Gopal Krishna sir, Sandeep Patil sir, all the faculty member of the college, and all the members who has joined on this platform. This online program is organized to enhance our knowledge, which is related to AI and its implementation in our day-to-day life. The NEP 2020 has answered in a transformative way as keeping the vision for Indian education, particularly in the domain of teachers' education, with a focus on the holistic, multidisciplinary learning and competency-based teaching. It emphasizes the need for the well-trained, motivated, and professionally equipped educators. This new paradigm seeks to bridge the gap between the theory and the practical. The emerging scenario reflects a shift towards a more empowered and accountable teacher workforce aligned with global standards. So let's welcome you all in this program. Now, moving forward, I would like to welcome our principal, Dr. Basundhara ma'am, to focus on today's topic. Thank you, ma'am. Good evening to all. It is my privilege and great pleasure to welcome you all to this important gathering focused on advancing the future of education through meaningful dialogue and collaboration. Today, as we stand at the crossroad of change in the educational landscape, it's my imperative that we as educators and leaders come together to explore innovative pedagogical strategy that can better engage learner and foster deeper understanding. The traditional boundaries of teaching are evolving, and it's through experimentation, creativity, and shared experience that we can reimagine classroom practice or the 21st century. An equally vital part of our discussion will be to understand the role of regulatory bodies in streaming teacher education reforms. These institutions play a crucial role in shaping the framework within which we operate. Gaining clarity on their objectives and collaborating in the implementation of their vision is key to ensuring quality and consistency in teacher preparation. Another essential focus is the integration of vocational education, ethics, and lab skill into our curriculum. In a rapidly changing world, education must extend beyond academic to include real-world competencies, ethics, grounding, and emotional resilience. Our change lies in developing a strategy that are not only particular but also impactful in shaping well-rounded individuals. Finally, we aim to encourage faculty collaboration and institutional preparation, a culture of collaboration among educators, and a readiness to embrace change at the institutional level are correspondence of sustainable education reforms. Thank you so much. We welcome you all and thank you so much. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite our today keynote speaker, Dr. Anmol Ubale sir. And for that, I am here to say something about Dr. Anmol Ubale is a renowned academician, researcher, and motivational speaker.
Currently, he is working as an assistant professor at PVDT College of Education for Women, SNDT Women's University, Mumbai. He has a special interest in the use of AI in teaching and learning and has delivered lectures on AI at several premier institutions like PMMTC centers, Devi Ahilya Viswavidyalaya Indore, and Lal Bahadur Sastri Teaching Learning Center. He has 15 years of academic experience as 13 years in NSS program officer, 30 plus national and international research papers he has published and authored 3 books and many more. Dr. Ubale has also made significant contribution in the field of educational technology, research, and youth development. He is known for his innovation, guidance, and inspirational lectures. Sir, welcome you again. Now, I would like to hand over to Dr. Anmol sir. Thank you, madam. Good evening, one and all. First of all, I would like to thankful to our principal madam, Vasundhara madam, my friend Dr. Sandeep Patil, who connected with me and giving me opportunity to interact with you all. So today we are going to explore one of the most transformative and exciting development to our future education, that is artificial intelligence. And everyone can use what is using AI, what is mean by AI, how we can use AI. So first of all, I will share my PPT and then we will start exact. Hello. Kindly allow me to share my PPTs. Okay. Thank you. So just before starting my lecture, just you think about it. Can a machine think like a human? Can a computer write properly, recognize your faces? Is it possible to drive a car, or is it possible to write a poetry? Let's start with how AI can do a work for the transforming educations with AI, and that is the future of teaching. So objective of the lecture is तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट एआई एंड हाउ इट वर्क्स इन एजुकेशन. तो आज हम लोग देखने वाले कि कैसे मतलब एआई का इस्तेमाल करना है. वी विल डिस्कस और वी विल एक्सप्लोर अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एआई इन क्लासरूम. तो मैं आज आपको एआई के मतलब क्लासरूम में किस तरह से यूज करना है उसके बारे में, अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ. विल डिस्कस अबाउट एआई पावर्ड टूल्स दैट सपोर्ट्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स. तो मैं आपको बहुत सारे AI powered tools with practically we will handle how to use and how to applications these types of tools in day-to-day life. वो हम लोग देखने वाले हैं. We discuss the future impact of AI in education and how can we prepare for it. So these are the objective of today's lectures. So before starting, everyone will know about that. What this is the smart home. तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये एक नई कॉन्सेप्ट आई है कि स्मार्ट होम से आप वी कैन मैनेज लाइट्स, हॉट वाटर, कैमरा, प्लग्स, मोशन सेंसर्स, टेम्परेचर, हीटिंग प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन द मोबाइल्स. तो हम लोग स्मार्ट होम्स जो कॉन्सेप्ट आई है आज अभी आप देख सकते हैं जिनके घर में स्मार्ट क्लासेस, मतलब हमारे यहाँ तो स्मार्टफोन जब आया तो हमें लगा था कि ये this was the excellent revolution in the technology field. और आज आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल से ही आपके घर के बहुत सारे काम जो है वो स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट में किए जाते हैं. जैसे आप बैठे बैठे ऑफिस में ही आपके घर में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, एसी बंद करने तो आप बंद कर सकते हैं, कैमरास को हैंडल कर सकते हैं. तो ये
बिकॉज ऑफ क्या हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। इवन स्मार्ट फ्रिजेस आए हैं अभी, आप देख सकते हैं कि स्मार्ट, आप एट ए टाइम स्मार्ट फ्रिज का इस्तेमाल करके उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रिसेंटली अभी मतलब जो उस एरिया में आप हो, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आप अलग अलग मैसेजेस भेज सकते हैं। व्हाट्सअप आप फ्रिज के थ्रू कर सकते हैं, कॉलिंग फ्रिज के थ्रू कर सकते हैं, अच्छे से सॉन्ग्स भी आप थ्रू स्मार्ट फ्रिजेस के थ्रू यूज कर सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस कॉन्सेप्ट आई, उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया कि हर एक के हर हैंड में वृष्ट आया, और वो जो है वो वॉचेस जो है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है कि स्मार्ट वॉचेस आए हैं। तो आप स्मार्ट वॉचेस के थ्रू वी कैन कॉलिंग टू अदर्स, उसके थ्रू वी कैन मैसेजिंग टू द अदर्स। और रिसेंटली अभी आप देख सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट आवर बीपी, शुगर प्रोसेस, आवर हार्ट रेट थ्रू स्मार्ट वॉचेस। देन न्यू रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ते गए, और हमें देखने को मिला कि देर आर स्मार्ट ग्लासेस। तो आगे अगर आप मतलब पिक्चर देखेंगे तो स्मार्ट ग्लासेस कॉन्सेप्ट आई, जिसमें आपको आपको तो दिखेगा कि मतलब हम सामने के व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके स्मार्ट मतलब ऐसे कुछ नॉर्मल ग्लासेस है, लेकिन जो व्यक्ति यूज करेगा उसके ग्लासेस में अ, सभी प्रकार के मैसेजेस आए तो दे रिकॉल कि मैसेज आया है, टेम्परेचर वो बताएगा, अ, आप कितने स्टेप्स चल के आए ये सब बताएगा। अगर आपको गूगल लोकेशन आपको ढूंढनी है तो आप स्मार्ट ग्लासेस को आप मतलब कमांड दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ग्लासेस के सामने ही आपको दिखाएगा कि आप राइट वे में जा रहे हैं, कितने मतलब दूरी के बाद वी कैन टेक राइट टर्न्स और लेफ्ट टर्न, एवरीथिंग। ये सब जो चीजें है वो क्या है कि आपको स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू अवेलेबल होते हुए दिखाई थी। अभी उससे भी और आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई कि वी कैन प्रिपेयर अ स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज। अभी स्मार्ट ग्लासेस का जमाना गया, अभी कॉन्टेक्ट लेंसेज है, हम लोग का लेंसेज जैसे नॉर्मली लगाते हैं वैसे लेंसेज लगा के, तो ये लेंसेज क्या करते हैं, तो सेम सिमिलरली आपको कॉलिंग आया तो कॉल करने का आप डायल करेंगे, या कुछ मॉनिटरिंग करना है, हेल्थ मॉनिटर उसके ऊपर होता है, या कोई रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आप फेस टू फेस किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लासरूम में, और आपको क्लासरूम के फीचर मतलब क्लासरूम के फेसेस बच्चों के क्या है, उनके इमोशंस कैसे है, या वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने के लिए देर आर दिस स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंसेस आए। आगे बढ़ते हुए गए, और फिर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन एजुकेशन सेक्टर में है, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आप देख सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी ने तो मतलब आपके एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एआर और वीआर जिसे बोला जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो अभी क्या है कि हम लोग एक स्मार्ट लेंसेज जैसे एक ऑगमेंटेड रियलिटी बॉक्स रहता है, जिसका इस्तेमाल करके आप 3D शेप में हर एक चीज है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सोलार सिस्टम को वो व्यक्ति जो बच्चा है वो देख रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप सचमुच उस जगह पे गए हो और उसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर रहे हो। तो ऑगमेंटेड रियलिटी से बहुत ज्यादा मतलब अभी तो एनसीटी ने सभी को ऑगमेंटेड रियलिटी मैंडेटरी किया है, क्या हर एक स्कूल में अभी ऐसे डिवाइसेस आएंगे, और फिर बच्चे जो है वो क्या है कि उसको 3D शेप्स में जाके सीखेंगे, तो वो हर तरीके से मतलब उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। उसके बाद और रिवॉल्यूशन आया जो कि एजुकेशन सेक्टर में आया, जो है ह्यूमनॉइड एआई। हेलो, हेलो, आई थिंक स्मिता। सो उसके बाद ह्यूमनॉइड एआई आए, जिसमें तो पूरा मतलब एजुकेशन सेक्टर्स में ही चेंजेस आए। तो हर मतलब हर सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग वैसे ही दिखने वाला एक रोबोट तैयार किए गए, और जिसके थ्रू रोबोट के थ्रू क्या हुआ कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, और मैकेनिकली वी डू वर्क, जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने बढ़ावा दिया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एआई न्यूज एंकर, तो ये जीन जीएमओ जैसे है, तो इन्होंने चाइना ने सबसे पहले एआई न्यूज एंकर का निर्माण किया, और उसके थ्रू जैसे ही मतलब न्यूज देनी शुरू किए तो सब लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एआई को कमांड दिया कि इसके ऊपर न्यूज बनाना है, और आपको
प्रेजेंट करना है तो ऑटोमेटिकली एआई न्यूज एंकर जो है वो न्यूज अच्छी तरह से सेम जो ह्यूमन एंकर है उसकी तरह से बोलना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में या इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जैसे ही चाइना ने एआई एंकर यूज किया वैसे ही फिर इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे पहले एआई एंकर जो कि जिसका आपको देख सकते, सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल एंकर जो है वो इस जगह पे सना नाम की जो एंकर है। और आप इफ यू इंटरेस्टेड इन एआई इन एजुकेशन तो आप एआई एंकर का जो सना के जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर से वीडियोस है, आप इंडिया टुडे के ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो आपको जितनी भी न्यू एडवांसमेंट इन एआई एजुकेशन वो सब जो है वो एआई एंकर जो है वो आपको डेवलप करने का या आपको बताने की कोशिश करती है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सना एंकर ऐसे सर्च करेंगे गूगल पे तो डेफिनेटली आप मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट आए हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आए हैं वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट फीमेल एंकर भी हमारे इंडिया में आई। उसके बाद जैसे कि आपने एक न्यूज एक 4-5 महीने पहले न्यूज भी सुनी होंगी कि एआई टीचर रोबोट जो जिसका नेम था आयरिस, जो कि केरला के स्कूल में उसका मतलब उसको उसके थ्रू एजुकेशन देना शुरू किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आया। अभी भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आर्टिकल पढ़ते हो तो बहुत सारा वर्क जो है वो एआई रोबोट टीचर्स कर रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस अभी आता गया है कि अभी हर एक मतलब आपके मोबाइल्स में भी ऐसे अलग प्रकार के जो चैटबॉट्स आए हैं जिसके थ्रू आपको आपको गाइडेंस देने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूजर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंटेज यूज ऑफ एआई के मतलब करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो 53% जो है जो लोग है वो इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए 52 और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए 51% लोग जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं। राइट वेबसाइट कॉपी करने के लिए सबसे लोएस्ट 29% जो है वो। तो ये तो यूज ऑफ एआई इन बिजनेस सेक्टर्स में यूज होता है, लेकिन असल में टीचिंग लर्निंग सेक्टर्स में क्या कितना यूज होता है अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डाटा कि स्टूडेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस हेतु के लिए करते हैं। यूज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स, 36 स्टूडेंट्स आर यूज एआई फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा मतलब दिखाई देता है। 25% स्टूडेंट्स दे यूज फॉर सर्चिंग द रिसर्च आइडियाज। 24% दे यूज समराइजिंग रिलेवेंट आर्टिकल्स। तो जनरली क्या है कि रिसर्च सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो एआई का इस्तेमाल करते हैं और उससे भी बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज इन असेसमेंट आफ्टर एडिटिंग के लिए मतलब असेसमेंट के लिए एडिट करने के लिए 30% इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो असाइनमेंट जो है वो भी इसके थ्रू मतलब करते हुए दिखाई देते। तो अ, उसका परसेंटेज अभी 30% है पर अभी वो बढ़ने के अगर क्योंकि जैसे जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे वो परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 5% स्टूडेंट्स यूज इन असाइनमेंट आफ्टर एडिटिंग, 3% स्टूडेंट्स दे यूज असेसमेंट विथ एडिटिंग और नन ऑफ 47% जो है वो आज भी स्टूडेंट जो है वो आज भी दे डिडंट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और फॉर लर्निंग पर्पजेस। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब डरावना ऐसे मतलब ये है कि आज भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के जमाने में 47% स्टूडेंट्स आर दे डिडंट यूज एआई और दे डिडंट नो हाउ टू यूज एआई। So today's lecture is for to know how
So to know what is mean by artificial intelligence and how we can use artificial intelligence in teaching learning processes. So basically, so what is mean by artificial intelligence? So artificial intelligence means to refer the ability of the machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making. It is inspired by the way people use their brains to perceiving, learn, reason out, and devise the action. ये जो नीति आयोग है, जिसे जो कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर्स के लिए एक मतलब रिफॉर्म करने का काम है। पहले उसका नीति आयोग उसका नाम था, अभी वो उसका नाम बदल दिया गया है। लेकिन उन्होंने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे क्राइम्स भी क्रिएट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी। तो उसमें बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स अ मशीन्स लाइक थिंक, like perceiving, like learning, like to solve the problems or decision making like a human being। इसे ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस transforming the education by integrations of AI tools in the teaching learning process। So there are three important aspects of the artificial intelligence। One is a chatbot tool, second one presentations tool, our third one is a enhancing teaching learning tools। So we will discuss one by one। So first of all, we will discuss about what is chatbots। So there are n number of chatbots emerging in today's education, but I mention only few। So most important or most useful tool is a chat gpt। So everyone, I think most of are used in chat gpt, or most are aware about the chat gpt। So chat gpt is a open ai tool। so उसका जो मतलब उसको तैयार किया गया है, वो ओपन एआई जो कंपनी है, उन्होंने चैट जीपीटी का निर्माण किया। एआई चैट जीपीटी पावर्ड बाय द जीपीटी मॉडल्स वाइडली यूज द टेक्स्ट जनरेशन। बेसिकली ChatGPT can use for text generations, coding, learning assistant and automation। तो सबसे पहले जब ChatGPT जब मार्केट में आया, तो उसका इस्तेमाल करना इतने लोगों ने शुरू किया कि सब लोगों को लगा कि इससे मतलब बहुत सारे काम हमारे आसान हो सकते हैं। सो एवरीवन, मतलब जो भी जिसके पास मोबाइल है, उन्होंने ChatGPT का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर भी 47% आज भी यूज नहीं कर रहे। आज हम लोग देखने वाले कि चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पर पहले हम लोग देखते कि चैट बोट कौन, जेमिनी। जैसे ही चैट जीपीटी आया, तो गूगल को बहुत मतलब ऐसे लगा कि हमारा भी खुद का चैट जो बोट होना चाहिए, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर दे सके। सो गूगल हैज स्टार्टेड अ जेमिनी चैट जीपीटी टूल। तो उन्होंने किया। सो बेसिकली जेमिनी इज अ मल्टी मॉडल एआई मॉडल डिजाइन which will be used for the text, image, coding integrations of the Google services like Bard। तो पहले उसका नाम Google Bard था, then they converted into the Gemini। After that, ये दोनों के होने के बाद इंडियन जो भावेश अग्रवाल, जो कि ओला का फाउंडर, ओला जो हम लोग यूज करते हैं, तो फाउंडर ऑफ ओला, तो उन्होंने दे स्टार्टेड अ कृत्रिम इंडियन बेस्ट एआई चैटबॉट। तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इट वाज वेरी एक्सलेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन हम लोग को आदत हुई कि ज्यादा से ज्यादा अभी विल यूज चैट जीपीटी टूल। कृत्रिम एक बहुत अच्छा है, और बेसिकली कृत्रिम की फैसिलिटी मतलब द बेस्ट थिंग्स इज दैट कि वी कैन एम्बेड एन नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस बाय यूजिंग कृत्रिम। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इवन लैंग्वेज, इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस आप इस कृत्रिम के द्वारा सीख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मतलब चैट जीपीटी आया, जेमिनी आया, कृत्रिम आया, तो देन दे सडनली क्या हुआ कि चाइना चाइना को लगा कि चैट जीपीटी जो है वो इट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, और डीप सिक जो चाइना जो है उसके पास, उनको पता चला कि एक दिन में ही मतलब चैट जीपीटी जो है वो उन्होंने मतलब एक दिन में ही 40 करोड़ लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया था। तो सडनली चाइना को लगा कि
ये अगर चार्ली मतलब सब हमारा जो लोग जो यूज कर रहे हैं उसका डाटा भी वो यूएस में जा रहा है, सो इट उनके मतलब गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए दे स्टार्टेड डीप सिक्स। सो डीप सिक का उसके लिए उन्होंने निर्माण किया। डीप सिक जो था वो क्या है कि वो फ्री ऑफ चैटबॉट है। चैट जीपीटी के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं कुछ, सम एक्सटेंट वी कैन यूज फ्रीली, बट अगर आपको एडवांस यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज एडवांस चैट जीपीटी देन यू हैव टू पे द फीस। तो डीप सीक जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज चैट बोट है, जो कि चाइनीज मॉडल है। और जो भी चैट जीपीटी जो करता है वो भी काम करता है, बट उसकी खासियत है कि वो रिसर्च के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और जैसे ही डीप सीक किया तब उन्होंने चाइना ने बोला था कि आप अगर आप यूज करना है तो आपको जेमिन मतलब आप जीमेल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जीमेल के थ्रू। जैसे ही डीप सीक आया 4 घंटे में उसने चैट जीपीटी का जो रिकॉर्ड है 4 दिन में बना था वो उसने 4 घंटे में तोड़ दिया। इतना लार्ज बेसिस पे वो डीप सीक को यूज करना शुरू किया। फिर उन्हें पता चला कि हमने तो मतलब उन लोगों को बोला गया है कि आप जीमेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन जीमेल को अगर यूज करेंगे तो जीमेल का जो सर्वर है वो तो यूएस में है, फिर अगेन उसके राइट्स उधर जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया कि इफ यू वांट टू यूज अ डीप सीक देन यू हैव टू क्रिएट अ डीप सीक ईमेल आईडी। तो ये मतलब राष्ट्र राष्ट्रों के बीच में ये वार चलते रहते हैं। आफ्टर दैट ये चैटबॉट का इतना ज्यादा लार्ज स्केल में मतलब एडवांसमेंट हुआ, तो एलन मस्क जो है, जो कि टेस्ला जिन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार शुरू की थी, दे स्टार्टेड गोर। और अभी आप देख सकते हैं कि गोर की द एक्सलेंट और मोस्ट यूजफुल चैटबॉट इन दी टुडेज एजुकेशन और टुडेज टेक्नोलॉजी एरा। तो आप जैसे कि आप यूज करेंगे तो आप भी गोर को जो कि उसने भी एम्बेड किया है, बहुत सारे काम आप गोर के थ्रू कर सकते हैं। सो दीज आर द चैटबॉट। सो ऑन व्हाट पर्पस वी हैव यूज अ चैट जीपीटी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग बाय प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सो गूगल पे जाना है आपको। आप स्क्रीन शेयरिंग है मेरी, आपको दिखाई दे रही है? ओके। गूगल पे Yes, जाने के बाद, हाँ, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि चैट जीपीटी से सर्च करना है। चैट जीपीटी से नॉर्मली सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगी जिसमें इस प्रकार का सिंबल दिखाए, अलग अलग सिंबल्स है लेकिन आपको इस प्रकार का अगर सिंबल दिखाई देता है तो उसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको इस जगह पे दिखाई देगा। तो आपको एंटर करना है। अभी इतना टाइम नहीं कि आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊं कि किस तरह से आपको यूज करना है या लॉग इन कैसे करना है। सिंपल है, आप गूगल जीमेल से आप उसको लॉग इन कर सकते। सो ये चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल टीचर्स के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी जो है वो हम लोग बाय वी यूज चैट जीपीटी फॉर लेसन प्लानिंग एंड करिकुलम डिजाइनिंग। अगर आपको लेसन प्लानिंग करना है तो इट वाज वेरी एक्सलेंट। चैट जीपीटी कैन प्रिपेयर अ वेरी एक्सलेंट लेसन प्लान फॉर यू। इवन करिकुलम डिजाइन करना है तो उसके लिए है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के लिए वी कैन क्रिएट वर्कशीट, क्विजेस, एक्टिविटी शीट्स, वो भी हम लोग देखने वाले। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी कैन प्रिपेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस, generate we can generate mind map और concept map through chat gpt। केस स्टडीज हम लोग कर सकते हैं, सिनारियो जो है उसको हम लोग कर सकते हैं, समराइज टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, तो बहुत सारे असाइनमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर अ रूब्रिक्स इन एनी असेसमेंट टूल। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए अगर बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज कौन कौन से उसके लिए यूज कर सकते हैं। आईसीटी और डिजिटल टीचिंग सपोर्ट्स के लिए जैसे कि गूगल क्लासरूम्स है, काहूत, कैनवा, फ्लैश कार्ड्स तैयार कर सकते, एलएमएस के लिए कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते। तो बहुत सारा ज्यादा हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें यूज करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे करना है। तो पहला पूछते हैं कि कैन यू प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर मी। ये पहले पूछना है, देखना है कि ये बन मतलब प्रिपेयर करता है कि नहीं। तो चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है।
वो आपको बहुत अच्छी तरह से जवाब देता है। आप देख सकते हैं कि yes, absolutely, I can help with you. I can help you with that. To create a effective lesson plan, I need few details. तो उन्होंने आपको आइडियल लेसन प्लान बनाना तो क्या क्या डिटेल चाहिए वो बताए। सब्जेक्ट, टॉपिक, ग्रेड चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, टीचिंग मेथड चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्स, टीचिंग एड्स कौन कौन से चाहिए, और असेसमेंट मेथड। तो हम लोग देखते हैं, उसको प्रॉम्प्ट डालते हैं, क्रिएट अ लेसन प्लान, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेसन प्लान फॉर टीचिंग फोटोसिंथेसिस टू 8th स्टैंडर्ड हम लोग करते हैं स्टूडेंट। हाँ। और उन्होंने क्या बोला है कि सब्जेक्ट तो हमने दिया है साइंस सब्जेक्ट, वो तो पता चलेगा, फॉर 40 मिनट क्लास। और बाकी तो वो सब करेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उसको कि प्रिपेयर और 3 tables। One is content, second is Sorry, sir, the things are not visible. not visible. Just wait, I again share it. Okay, now visible. Yes, sir, now it is visible. Okay, thank you for. Okay, then one is the content, second one is the teacher activity, and third one is a student activity. ये इस तरह से आप उसको कमांड दे सकते हैं। अगर आपको उसमें भी और ज्यादा देना है कि आई नीड एग्जाम्पल्स वगैरह, तो आप लिख सकते हैं, या कुछ जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एड सम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, और ऐसे करने के बाद मुझे इंटर करना है। सो आप, मैंने क्या बोला था कि क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग फोटोसिंथेसिस फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके लिए ये इस तरह से देख सकते हैं कि हमने उसको बोला नहीं था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें लिख के दे दो, तो दे इटसेल्फ प्रिपेयर्ड अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, दे इट इज टोटली बेस्ड ऑन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, already I told about that ki prepare a table, so they prepared a table, a content table, a key points। अभी कमांड प्रॉम्प्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कमांड देते हो। जैसे कि मैंने प्रिपेयर टेबल बोला था, तो दे सडनली प्रिपेयर टेबल। अगर आपको लिखना है कि विदाउट टेबल प्रिपेयर लेसन, देखो, विदाउट प्रिपेयर लेसन प्लान, सो करंटली वो बोलेगा कि विदाउट टेबल आपको, देख सकते हैं आप कि अभी लेसन प्लान अगेन वो फोटोसिंथेसिस, ग्रेड 8th स्टैंडर्ड आया है, टॉपिक आया, ड्यूरेशन, टीचिंग एड्स कौन कौन से लगेंगे वो भी है, उसने लिख के दिया है कि कौन कौन से टीचिंग एड्स लगेंगे। और कंटेंट टेबल अभी आप देख सकते हैं कि कंटेंट टेबल में की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा लगेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाने के लिए, ये सभी जानकारी। और फिर अभी टीचर्स एक्टिविटी आपके लिए तैयार करेगा। अगर आपको टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी अगर एक साथ लेनी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, या इधर आप डायरेक्टली उसको कमांड दे सकते हैं कि आप मेरे लिए टीचर एक्टिविटी जो है वो, स्टूडेंट एक्टिविटी जो है वो प्रिपेयर करके दे दो।
अभी आपको ये लेसन प्लान जो है वो, अगर आपको लगता है कि ये लेसन प्लान कुछ अलग ही बना है, मतलब आपके यहाँ मतलब इस प्रकार का लेसन प्लान नहीं बनता है, तो आप अपने इस जगह पे जाके, जैसे ऐड ऑप्शंस है, ऐड फोटोज और देखो फाइल्स में जाके, ऐड फोटोज एंड फाइल्स में जाके आप अपना जो टेक्निक्स जो यूज करते उसको पहले सिलेक्ट कीजिए, और फिर उनको बोले कि इस फॉर्मेट में आप मुझे इस जगह पे बना के दे दो। तो आपको वो आपके लिए खुद जो है वो टीचिंग एड्स बना के देगा। या आप मतलब उसको टीचिंग एड्स लेसन प्लान्स बनाने के लिए बोला, जैसे कि मुझे अगर सेम टॉपिक के ऊपर जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे टाइप्स ऑफ सॉइल इस पर लेसन प्लान बना के दो इन हिंदी, ऐसे अगर सर्च किया तो आपको हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो मृदा के प्रकार के ऊपर परिपूर्ण पाठ्य योजना हिंदी माध्यम के लिए, वो कक्षा भी उसने बोला है कि कक्षा आप 5th to 8th स्टैंडर्ड कभी भी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके लिए लेसन प्लान भी जो है वो बना के दे रहे हैं। यहाँ कौन कौन से संसाधन लगेंगे ये भी बता रहे हैं, पाठ का उद्देश्य क्या है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन वो भी आपको बता रहा है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी के थ्रू इस्तेमाल करके आप प्रीवियस नॉलेज में क्या पूछना है ये भी आपको जानकारी दे रहे, न्यू नॉलेज में क्या शिक्षक छात्र से क्या पूछेगा ये भी उसने जानकारी दी है। तो लेटेस्ट जैसे आप जो उसको जिस प्रकार से फॉर्मेट आप उनको प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए उसी प्रकार से लेसन प्लान जो है वो बना के देगा। इस तरह से देख सकते हैं कि अभी 5 मिनट में क्या बोलना है आपको, पहले 5 मिनट में मृदा क्या है परिभाषा, मृदा के प्रकार 15 मिनट आपको बोलने, ये सब जानकारी जो है वो आपको देगा। तो फिर आप उसके थ्रू लेसन प्लान भी बना सकते हैं। और आपको अगर डिटेल में ये चाहिए कि क्या बोलना है, तो इस जगह पे आपको ये जानकारी दे रहा है कि मृदा क्या है, तो उसकी जानकारी दी है, मृदा के प्रकार आपको बताने, तो रेतीली मृदा, मिट्टी वगैरह। अगर आपको इसमें ये बोलेंगे कि पिक्चर्स और यूट्यूब के लिंक्स भी हमें मुझे भेज दो उसमें, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे ऐड पिक्चर्स एंड रिलेवेंट वीडियो लिंक, और इस जगह पे अगर ये होने दो उसके बाद देन जैसे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको एंटर करना है। तो मैंने अभी फिर नेक्स्ट बोला कि मुझे कुछ पिक्चर्स और रिलेवेंट वीडियो लिंक भी उसमें ऐड करके दे दो, तो अब देख सकते हैं कि they suddenly started a particular YouTube videos link, जैसे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स रिलेटेड उसने बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हैं मृदा की परतें, तो ये पिक्चर्स उसने प्रोवाइड किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप बोलेंगे कि एआई बेस्ड भेजो मुझे, तो आपको वो एआई बेस्ड इमेजेस भी इस तरह से भेज देता दिखाई देता है। 11 टोटल उसने भेजे हैं, और फिर आपको इस जगह पे आप अगर देखेंगे तो ये वीडियोस भी आपके लिए वो ऐड करके दे रहा है। तो इतना सारा मतलब आपको रेडीमेड दे प्रोवाइडेड ऑल थिंग्स। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी के थ्रू लेसन प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मतलब इसी टॉपिक के ऊपर मेक अ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल टॉपिक, ऐसे अगर आपने सर्च किया तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो क्या कर रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके इस पार्ट के ऊपर बना के दे रहे हैं, तो आप सडनली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे 10 क्वेश्चंस भी हमें एमसीक्यू बनाना है तो इतना सारा
समझ जा सकता है। तो चैट जीपीटी प्रिपेयर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि और उसके आंसर्स भी उन्होंने दिए गए। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आप किसी भी टॉपिक को आप देख बता सकते हैं कि इसके ऊपर मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना के दे दो। आप अगर उनको बोलेंगे कि प्रिपेयर चार्ट टेबल्स माइंड मैप्स फॉर पर्टिकुलर दिस टॉपिक, तो आपको माइंड मैप भी बना के देता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर माइंड मैप भी तैयार करते हैं, या दूसरा कोई टॉपिक डाल के भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो बनाता है। हम लोग इस जगह पे लिखना है फिर से, क्रिएट अ माइंड मैप ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल। आप अपने हिसाब से टॉपिक डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। मैं आपको समझाने के लिए मतलब इस तरह से कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको देख सकते हैं कि माइंड मैप बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चैट जीपीटी कैन प्रिपेयर माइंड मैप ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल। प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम लेता है और सडनली आपके लिए वो माइंड मैप भी प्रिपेयर करके देता है। तो आप माइंड मैप भी बच्चों को दिखा सकते हैं। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझे नहीं तो आप उसको कमांड दे सकते हैं, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ फॉर्मेट। अगर सेम टॉपिक के ऊपर आपको इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ वीडियोज और इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ वीडियो यूट्यूब वीडियोज फॉर यूट्यूब, सो आप उसके लिए भी स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो वो भी बना के देता है। लेट्स सी, पहले हम लोग इमेज देखते हैं कि हाउ दे प्रिपेयर माइंड मैप इमेजेस, देन विल मूव टू हाउ टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट। एक्चुअली इमेजेस के लिए टाइम लेता है क्योंकि वो सडनली मतलब वो खुद जनरेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तब तक होने तक हम लोग देखेंगे कि अगर आपको उसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर शॉर्ट स्क्रिप्ट, और आप वैसे भी रोल प्ले भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रिपेयर शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल। ऐसे अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब देखो माइंड मैप जो है वो उसने तैयार किया है। क्रिएट माइंड मैप हमने बोला था। तो ये इस प्रकार का माइंड मैप जो है रेतीली मृदा, तो उसका मतलब फॉर एग्जांपल दिया है चिकनी मृदा किस तरह से होती है। तो इस तरह से माइंड मैप जो है वो अपने लिए बना के देता है। इस जगह पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको अगर करना है तो। अभी सेम टॉपिक के ऊपर हमें क्या करना है कि स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। प्रिपेयर स्क्रिप्ट ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये जनरली अगर जो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं वो इस तरह से कमांड, जो टीचर्स जो वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको टीचिंग रिलेटेड स्क्रिप्ट बनानी है तो आपको इस तरह से स्क्रिप्ट बना के देता है। अगर आपको वन एक्ट प्ले करना है तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दृश्य है प्रथम प्रकार रेतीली मृदा समझाने के। तीन कैरेक्टर्स भी दिए, अंजलि टीचर्स और राहुल, और उनके बीच में जो भी स्क्रिप्ट है मतलब जो भी संवाद हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट वन एक्ट प्ले जैसे स्क्रिप्ट भी दी गई। तो बहुत सारे काम करता है, रूब्रिक्स बनाता है। अब वो अगर बोलेंगे तो क्रिएट और रूब्रिक्स ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो रूब्रिक्स भी बना के देता है, पीपीटीज भी बना के देता है। जैसे देख सकते हैं कि अगर मृदा के प्रकार को अगर आपको इवेल्युएशन करना है बच्चों का कि क्या क्या समझा है, तो पहले आप उसका इवेल्युएशन इस रूब्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि उनको बच्चों को विषय की समझ कितनी है तो उसको ये अंक दे सकते हैं। 4 अंक मतलब उत्कृष्ट, 3 अंक मतलब अच्छा, 2 अंक मतलब संतोषजनक। तो इस तरह से विशेषताओं की पहचान करता है तो
उसमें भी क्या करता है, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी के 2+ विशेषताएं सही रूप से बताता है क्या, तो ही उसको 4 अंक देंगे। तो इस प्रकार का रूब्रिक्स जो है, इवेल्युएशन रूब्रिक्स जो है वो उन्हें दिए गए हैं। और इस जगह पे अंक वर्गीकरण 21 और 24 के बाद मतलब अंक मिलते हैं तो उत्कृष्ट 17 से, तो इस तरह से ग्रेड भी वो बना के हमारे लिए देता है। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है। आप आपको क्लास में जैसे कि अगर आपको ये मतलब टाइम टेबल बनाना है तो भी वो बना के देता है आपको, कि अगर आप प्रोवाइड करते हो कि मुझे ये टाइम टेबल बना के दे दो, तो तुरंत आपके लिए टाइम टेबल्स भी बना के देता है। आपको सिर्फ बताना है कि कितने टीचर्स हैं, कौन से टीचर्स, अगर आप उनको नाम देंगे कि ये टीचर जो है वो दे टीच हिंदी, दूसरे टीचर का नाम है दे टीच इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट वाइज देंगे तो आपको उनका, और आप अगर कॉलेज का टाइम देंगे तो वो आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टाइम टेबल्स भी बना के देता है। इवन अगर आपको मतलब रिसर्च करना है या एक्शन रिसर्च करना है, जैसे कि प्रिपेयर एक्शन रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन अचीवमेंट अचीवमेंट ऑफ 8 स्टैंडर्ड। तो इसके ऊपर हमें अगर एक्शन रिसर्च करनी है तो अगर हम उसको कमांड देते हैं तो वो सडनली हमारे लिए न्यू लेना पड़ेगा। ये हमने फिर से न्यू लिया और फिर हमने बोला कि प्रिपेयर एक्शन रिसर्च। तो आप देख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च भी हमारे लिए बना के दे रहा है। तो टाइटल भी हमारे लिए सजेस्ट किया उसने, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हमने सिर्फ उसको गाइडलाइन दिया था, उसने टाइटल बना दिया, इंट्रोडक्शन लिख के दिया, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, हाइपोथेसिस क्या होगा, मेथोडोलॉजी किस तरह से होगी, टूल्स क्या बनाएंगे। अगर आप उनको बोलेंगे कि टूल्स भी बना के दे दो तो दे मतलब प्रिपेयर्ड टूल्स फॉर यू। इवन आप अगर आपको मतलब सर्वे करने के लिए अगर टूल चाहिए तो आप उसको बोल सकते हैं प्रिपेयर सर्वे सर्वे बेस्ड टूल्स ऑन दिस टॉपिक। तो आप आपके लिए आप देख सकते हैं कि सर्वे बेस्ड क्वेश्चनर भी आपके लिए बना के दे रहा है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आप गूगल फॉर्म में उसको कर सकते हैं। तो आप इजीली आप उसके थ्रू सर्वे भी कर सकते हैं। सेक्शंस वाइज सर्वे वो आपके क्वेश्चनर बना दे के दे रहा है। इतना सारा काम जो है वो चैट जीपीटी जो है वो आपके लिए करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप मतलब इन फ्यूचर अगर आपको यूज करना है तो चैट जीपीटी को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे काम करता है, अभी इस जगह पे पॉसिबल नहीं कि सभी काम दिखाना। ये पीपीटी में आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा इस जगह पे अगर हमने देखा था कि चैटबॉट के बाद विल डिस्कस अबाउट दी प्रेजेंटेशन टूल। तो हियर इज अ presentation tools. First of all, Almanac. The Almanac is a best presentation preparing a presentation tools. जैसे कि आप देख सकते हैं कि दे प्रिपेयर्ड एजू स्लाइड्स। उसके बाद आप अगर आपको बनाना है तो मतलब इट टेक्स इनपुट फॉर वेरियस रिसोर्सेज। आप ले सकते हो उस पीपीटीज में फाइल्स, वीडियोस, यूआरएल। वी कैन एम्बेड ऑल दैट थिंग्स इन द प्रेजेंटेशंस। बेसिकली अल्मेनिक जो है वो बहुत अच्छा टूल्स है, आपको यूज करने कर सकते हैं। क्यूरीफॉर्ड इज आल्सो नाइस टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। ब्रिक स्टिचिंग इज अ गूगल एक्सटेंशन। मतलब अगर आपको यूज करना है तो गूगल एक्सटेंशन जो क्रोम का, गूगल क्रोम का जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि कैन प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, prepare a PPT, study notes, summarizing, both n number of work they do. Brick stitching, Canva AI. So Canva AI is a very user friendly tool. We can use Magic AI, Canva AI through we can prepare a AI presentations में कर। अभी आप कैनवा के लिए अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अपडेट आया है। आप कैनवा में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जैसे पहले था कि अगर आपको मैजिक
राइट बटन को यूज करना है तो मतलब पे करना पड़ता था, पर अभी रिसेंटली उन्होंने मैजिक राइट बटन जो है वो आपको फ्री किया है, तो आप उसके थ्रू भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल टूल्स जो कि टीचर्स 99% टीचर्स दे यूज Gamma for preparing presentations. So basically Gamma is a AI powered tools. It creates modern interactive presentation. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे गामा हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और इस जगह पे हमें गामा ऐसे सर्च करना है, GAMMA। तो इस तरह से गामा जैसे आप सर्च करोगे, सो फर्स्ट लिंक जो आएगी गामा AI पावर्ड स्लाइड, उसको आपको क्लिक करना है। पहली जो लिंक है उसको आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक इंटरफेस अभी ऑलरेडी मेरा लॉगिन उसमें है, इसलिए डायरेक्टली प्रोसेस मतलब स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली अगर आपको, जैसे मैं साइन आउट करके आपको बताता हूँ किस तरह से आप उसमें एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके लिए होगा। आपको कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपका गूगल अकाउंट जो है वो क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। तो ये गूगल जनरली बेसिकली कैनवा का ये है। इस जगह पे आप 360 क्रेडिट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 360 क्रेडिट एवरी मंथ दे गिव 360 credits for you. So at maximum one PPT is equal to 1 credit. So approximately we can use 360 slides once in a month. तो आपको बहुत ये 360 क्रेडिट्स बहुत होते हैं, आपको उसके लिए परचेस करने की जरूरत नहीं। सब पहले क्या क्या कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू बटन, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू बटन। So there are the three important windows or aspects of the Gamma. First one, we can paste the text and it's after that it converts into the presentation format. Otherwise we can generate, so these are the AI powered tool. So we can generate through AI, or next is the we can import URL and paste it your URL and then it convert into the PPT. So these are the these three are the very excellent buttons. First of all, we will click on the generate button. So after clicking on the generate button, there is a four buttons are there. One is the presentation. If you want to prepare a PPT, then you have to click on the presentation button. If you want to prepare a web page for your ऑन वेबसाइट्स वगैरह, तो आपको इस वेब पेज को क्लिक करना है। तो आपके लिए वो वेब पेज भी तैयार करता है। थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंट। इफ यू वांट टू प्रिपेयर वो मल्टीपल और इंटरेक्टिव documents, then you have to click on the document. Or most recently they started a social interface for the Gamma. तो अगर आपको आपकी पीपीटी आपको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द सोशल बटन। सो हम लोग पहले प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। हमें वी वांट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। सो पहले क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन बटन। आफ्टर दैट हियर इज अ 8 cards. 8 cards means one card means one PPT or one presentation slides. So cards means slides. So at a time, uh, if you want to a free Gamma source, so at a time we can prepare 10 cards in the free user mode. तो आपको 10 जो कार्ड्स है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको ज्यादा यूज करनी है तो यू हैव टू क्लिक, यू हैव टू परचेस और यू हैव टू पेड प्रो वर्जन। तो अभी हमें 10 कार्ड्स इज इनफ फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपको 40 मिनट्स करने तो 10 कार्ड्स इज इनफ होते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट ही ऐसे ही रखना है आपको। अगर आपको ये जो डिफॉल्ट मीन्स जो लेटेस्ट फॉर्मेशन, और पहले कैसे था कि पहला जो 4x3 हम लोग अगर पुराने 2003 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे या प्रेजेंटेशन स्किल देखेंगे तो उसका
स्लाइड रेशियो जो था वो 4.3 था। अभी क्या है कि रिसेंटली 16:9 आया है, तो हम लोग उसको डिफॉल्ट रखते हैं तो वो हमारे लिए, या ट्रेडिशनल मोड में अगर आपको रखना है तो वो भी रख सकते हैं, पर डिफॉल्ट रखा तो आपको आपके सब्जेक्ट वाइज वो लेटेस्ट नहीं बताता। इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी। गामा ने गामा यूजर फ्रेंडली टूल्स है, और गामा दे ये देखता है कि कितने यूजर्स है। तो इंडिया में इतने सारे लोग यूज करते हैं गामा को, इसलिए मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेजेस दे एम्बेडेड इन द गामा। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे हिंदी है, भोजपुरी है, बंगाली है, कर्नाटकी है, मराठी है, ऐसे बहुत सारे, मतलब अब देख तेलुगु है, तमिल है, तो मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो आपको इस जगह पे दिखाई देंगी। तो आपको जिस लैंग्वेजेस में आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो इंग्लिश ही में रहने देता हूँ। इस जगह पे आपको क्या करना है कि टॉपिक नाम देना है। तो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आपको पीपीटी बनानी है, वो आपको इस जगह पे लिखना है। तो मैं इस जगह पे जो है वो, अगर हमें टॉपिक बताना है, जैसे कि हम लोग महात्मा फुले जी के ऊपर बनाते हैं, या आप कोई भी एक टॉपिक डाल सकते हैं कि जैसे सावित्रीबाई फुले है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, या जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी डाल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस है, क्लाइमेटिक चेंज है, सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, जो भी आपको जिस टॉपिक के ऊपर बनाना है उस टॉपिक के ऊपर बना के देता है। मैं महात्मा फुले मैंने इसलिए सजेस्ट किया है, सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसके उनके फोटोग्राफी वगैरह कैसे आते हैं, अलग अलग फीचर्स आपको बताने हैं। तो आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो और उसके बाद हमें क्या करना है कि क्रिएट ऑन दी जनरेट आउटलाइन बटन। जैसे हम लोग जनरेट आउटलाइन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सडनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैन प्रिपेयर आउटलाइंस फॉर। तो हर एक स्लाइड्स में क्या टॉपिक्स होंगे, जैसे पहली स्लाइड जो है उसमें महात्मा फुले चैंपियन ऑफ द सोशल जस्टिस, तो इन इस जगह पे बायोग्राफी है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अर्ली लाइफ उनकी कैसे, एजुकेशन, चेंजिंग चैलेंजिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सत्यशोधक समाज, अनटचेबिलिटी, एम्पावरिंग वुमन, पायनियरिंग एजुकेशन, लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशन, लीगेसी एंड इम्पैक्ट। तो ये ऐसे इस प्रकार से स्लाइड का आउटलाइन। अगर आपको कुछ जैसे डिलीट करना है तो आप इस जगह पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा के आप उसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड जो है वो 3 नंबर पे चाहिए तो आप इसको ड्रैग करके आप कहीं पे भी 2 नंबर पे ले सकते हैं, 3 नंबर पे ले सकते हैं, जैसे आपको इस तरह से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। स्लाइड डिलीट करने तो भी डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे इस जगह पे अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर आपको ऐड कार्ड करने तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, 10 कार्ड ये हमें फ्री में मिल रही, तो 10 कार्ड्स के ऊपर अगर आप करेंगे तो उसके लिए पेड वर्जन आपको लें। इस जगह पे थीम है, आप इसमें से थीम कोई भी चूज कर सकते हैं। इधर नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करता है, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी जो कंटेंट है, जो कंटेंट फॉर्मेशन में आपको जो कंटेंट है वो आपको ब्रीफ में चाहिए, मीडियम में चाहिए, डिटेल में। ब्रीफ में चाहिए तो उसमें ज्यादा डिटेल्स आते हैं, मीडियम मतलब दोनों भी, मतलब पिक्चर भी रहता है और इम्पोर्टेंट मैसेज टेक्स्ट ही उसमें पीपीटी में आएगा। डिटेल में चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट पीपीटी में दिखाई दे। तो मीडियम आपको इस जगह पे रखना है। आपको इस जगह पे इमेजेस सर्च करना है, आपको कौन कौन सी इमेजेस उसमें चाहिए। तो जनरली एआई इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई इमेजेस इज अ कॉपीराइट फ्री इमेजेस। सो नो वन कैन, कि आपको पूछेगा कि व्हाई यूज माय इमेजेस। तो कॉपीराइट इश्यू टालने के लिए हम लोग एआई इमेजेस करते हैं। देन आपको एआई इमेजेस मॉडल्स, आपको इस जगह पे अलग अलग मॉडल्स हैं, आप इसमें से कौन सा एआई मॉडल, जैसे डेल डेल ई जो है वो ओपन एआई का है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में आता है। और फिर देन यू हैव टू क्लिक ऑन द जनरेट बटन। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितने फास्ट लेवल पे जाके गामा आपके लिए पीपीटी बनाता है। जैसे हमने सिर्फ उनको महात्मा फुले जी ये टॉपिक दिया था, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने टॉपिक अलग अलग प्रकार से टॉपिक लिया। अभी आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिक्चर्स सिलेक्ट, मतलब इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है
वो आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या मतलब किस प्रकार की इमेजेस जो है वो पर्टिकुलर इमेजेस जो है वो आपको इस जगह पे लिखनी आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने तैयार किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये महात्मा फुले जी नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसको क्या करना है कि आप उसमें इस जगह पे जाके आप ज्योतिबा फुले जो है वो इनहांस प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं या प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं, और जनरेट करने के लिए बोलेंगे तो फिर से वो आपके लिए जनरेट इमेजेस करके देता है। फिर भी अगर आपको लगता है गलत आई, तो आपको क्या करना है कि आपको इस जगह पे जाके अनफ्लैश इमेजेस जो कि फ्री इमेजेस तैयार करना है, तो वो भी इसमें भी अगर आपको नहीं दिखाई देती है वो इमेजेस, तो आपको क्या करना है कि वेब इमेजेस सर्च में जाना है, और फिर आपको क्या करना है कि इस जगह पे आप देख सकते हैं, तो आप कोई भी एक महात्मा ज्योतिबा फुले की जो इमेजेस है उसको आप सिलेक्ट करके इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पिक्चर्स आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीपीटी जो है वो बना के मिली है। अगर आपको थीम चेंज करनी है, लाइटली थीम यूज करने हैं, तो आप इस जगह पे जाके लाइट थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिखने में डिसेंट ऐसी पीपीटी की स्लाइड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आपको इस जगह पे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो इस जगह पे क्लिक करके आपको एक्सपांड टेक्स्ट करना है तो कर सकते हैं, या मोर एंगेजिंग आपको करना है तो आपके लिए ये मोर एंगेजिंग कंसेप्ट जो है वो मतलब इसमें चेंज भी करके आपको मिलता है। तो इसमें से आपके लिए मोर एंगेजिंग कौन सा लगता है उसको आपको क्लिक करना है, तो सडनली जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मोर एंगेजिंग फॉर्मेट में वो बना के देता है। इस जगह पे अगर आपको लगता है कि इसमें ये डिटेल में चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप एक्सपांड टेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए वो एक्सपांड भी करके टेक्स्ट देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पे एक्सपांड करना शुरू किया है, तो इस तरह से एक्सपांड भी आपके लिए टेक्स्ट करता है। तो इसमें मतलब वैसे भी पीपीटी आपके लिए बना के देता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग फीचर्स में आप पीपीटी जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें ये है कि इस जगह पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट लेआउट कॉन्सेप्ट में जाके आप कॉलम्स बना सकते हैं, 3 कॉलम 2 कॉलम बुलेट्स आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस जगह पे इसको बुलेट देनी है, तो आप इस जगह पे जाके आपको बुलेट ऑप्शंस हेलो। लेआउट में जाके बुलेट लेआउट भी आप इस जगह पे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप देखेंगे तो इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं। इस जगह पे जाके आप मतलब कुछ वीडियोस भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर यूट्यूब का आप इस जगह पे वीडियो डालना है, और अगर आपको सर्च करना है महात्मा फुले से गो करना है आपको, तो या आप इस जगह पे अगर आपको मतलब नहीं आता है, तो आप यूट्यूब के कोई भी यूट्यूब पे जाके आप इस तरह से अगर आप यूट्यूब पे जाके अगर आप महात्मा फुले ऐसे सर्च करेंगे, इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो कोई भी एक वीडियो जो है वो अगर आपको लगता है, जैसे कि ये वीडियोस अगर आपको लगता है कि ये आपको भारत एक खोज का जो एपिसोड है वो अगर आपको इस जगह पे लेना है, तो इस जगह पे लिंक को कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, और इस जगह पे जाके आपको क्या करना है गामा इसमें जगह पे जाके इस जगह पे आपको पेस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली मतलब पीपीटीज में जो है वो डायरेक्टली उसमें स्टार्ट भी कर सकते हैं। चार्ट डायग्राम्स भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग मतलब बटन गूगल फॉर्म्स को आप दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पीपीटी जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तैयार हो चुकी है।
इस तरह से आप प्रेजेंटेशन मोड में जाके उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पे यूट्यूब का वीडियो, आप इसको क्लिक करेंगे तो सडनली तो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसमें असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इसको गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छे पीपीटीज आप जो है वो बना सकते हैं। इसके और एक खासियत मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे शेयर बटन है, तो हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। शेयर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो वी कैन कोलेबरेट एट ए टाइम 100 पीपल्स। आप 100 पीपल के साथ कोलेबरेट करके आप पीपीटीज बना सकते हो। देखते हैं हम। शेयर के ऊपर जाना है, इस जगह पे व्यूज की जगह पे एडिट ऑप्शन देना है, और इस जगह पे जो लिंक है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको मैं चैट सेक्शंस में आपको मैं डालता हूँ। आप उस लिंक को कॉपी करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मैंने जो लिंक आपको दी है, अगर आपको लिंक चैट बॉक्स में आई होगी तो उसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर कोई भी मतलब मैटर्स आपको मेरे पीपीटी में जाके लिखना है। आपको चैट सेक्शंस में मैंने लिंक भेजा है, लिंक के ऊपर क्लिक करो, और फिर जो भी पीपीटी आपको दिखाई देगी उसमें कुछ चेंजेस करो, डिलीट करो, जो भी है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। अभी तक किसी ने लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर जैसे ही आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो इस जगह पे आपके नाम आना दिखना शुरू हो जाए। तो पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक ऑन द लिंक बटन। जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे अभी 3 लोगों ने, 4 लोगों ने किया है। अब कोई भी एक जन, अभी आप देख सकते हैं इस जगह पे मेरा नाम है, प्रिपेयर्ड बाय अमोल उबाले। तो मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है क्योंकि मैंने गाइडलाइंस दी है, तो ये पीपीटी का जो राइट्स है वो टोटली मेरे साथ है। तो मैंने मतलब पूरा टोटल राइट जो है मुझे है। Yes, yes. I'll explain how can I export to the PowerPoint Office package. Yes, yes. I will explain it. So आपको कुछ भी मतलब इस जगह पे कुछ भी आप चेंजेस करो, डिलीट करो कुछ भी मतलब पार्ट्स, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। एबीसीडी भी लिखा तो भी चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो है वो आए हैं। अभी आपके नाम, आपने सडनली उस लिंक के ऊपर क्लिक किया इसलिए आपके नाम नहीं आए, लेकिन जैसे आप गामा को यूज करना शुरू करेंगे तो इस जगह पे आपके खुद के नाम आएंगे। या अभी रैंडमली नाम आए क्योंकि आपको उन्होंने देखा नहीं, या आपकी लॉगिन डिटेल्स उनको पता नहीं इसमें। और जब आप उसको यूज करना शुरू करेंगे तो आपका नाम भी इस जगह पे दिखाए। मेरे ख्याल से अगर किसी ने चेंजेस किए होंगे तो आप बता सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर किसी ने किए होंगे, या सिर्फ एक वर्ड भी डिलीट किया तो भी चलेगा। किया किसी ने कुछ वर्ड डिलीट वगैरह ऐसा कुछ? ओके, हमें ये पता चलेगा कैसे किया या नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे पहले इस जगह पे अभी तक किसी ने नहीं किया चेंज, कुछ तो एक एटलीस्ट एक वर्ड तो डिलीट करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें मतलब कोलैबोरेशन कैसे होता है। आपको राइट से क्या कुछ चेंजेस करने के लिए दिया, मतलब आया है क्या कुछ चेंज कर सकते वगैरह ऐसा? अगर आपने चेंज किया, हाँ यस, किसी ने तो अभी चेंज किया मतलब डिलीट किया या नहीं, फिर से बैक किया शायद। सो मतलब जैसे आप इसमें कुछ लिखते हो तो आपका जो ऑथर राइट्स है वो आपका नाम इस जगह पे आता है। तो ये पीपीटी जो है उसके कॉपीराइट जो है वो 2 लोगों को शेयर होते हैं। फिर उसमें से 3 लोगों ने किया तो 3 लोगों के साथ, ऐसे एट ए टाइम 100 लोगों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पीपीटी कोलेबरेट कर सकते हैं। तो ये ऑफिस वर्क के लिए या नैक प्रिपरेशन के लिए इट वॉज वेरी एक्सलेंट टूल टू यूज टू कोलेबरेट one PPT at a time, 100. Sorry, sir. Actually, we are not getting where we have to change. There is no option Yes, yes. like that. Yeah, wait. First of all, I'll share right to you. Just 1 minute. Uh, Before that, I publish the site. Click on the publish site. तो मैं पहले publish कर देता हूँ तो फिर आपको दिखाई देंगे। Okay. Yes, uh, Uttam Kumar is editor. मतलब they edited something.
ओके, अभी आप कर सकते हैं, मैंने अभी राइट्स आपको दे दिया है, कोलेबोरेशन राइट दिया है। अभी एट ए टाइम आप, फिर से मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप उसमें अभी अ, उस लिंक को क्लिक करके आप कोलेबरेट कर सकते हैं। अभी रिसेंट वाली लिंक भी यूज किया तो भी चलेगा। अभी आपको मैंने कोलेबोरेशन के राइट दिए, आप एडिट कर सकते हैं। हाँ, यस, मिस्टर उत्तम कुमार अभी आप उसमें एडिट कर रहे हैं, जैसे नाम लिख रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप इस जगह पे दो कंट्रीब्यूटर्स हो गए। तो इसकी एक खासियत है कि जिसने भी कंट्रीब्यूट किया और कितने मतलब उसका रिपोर्ट्स भी आता है कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और कोई कर रहा है? ओके, ठीक है। सो अभी देख सकते हैं कि पहले मेरे नाम पे मेरे पीपीटी प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर अमोल था। अगेन मिस्टर उत्तम कुमार हैज एडिटेड सम इंफॉर्मेशन, सो द राइट्स has shifted to the other contributors also. So at a time two contributors, और कुछ लोग जैसे कि अभी इस जगह पे कुछ एडिट कर रहे, तो सडनली टू की जगह पे थ्री आएगा, थ्री की जगह पे फोर आएगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे इस जगह पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस जगह पे बदलती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी जो है वो डाउनलोड करनी है, सो क्लिक ऑन द शेयर बटन, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन। सो after clicking on the export button, we can export the PPT into the PDF format. So you have to click on the explore to PDF and click on the download button. तो आपकी पीपीटी जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड। इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन एमएस पावर पॉइंट फॉर्मेट, so click on the export to the PowerPoint button. At a time we can share PPT into the Google Slides also, तो आप इसको Google Slide फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनटू द पीएनजी फॉर्मेट में अगर चाहिए तो पीएनजी फॉर्मेट में डायरेक्टली ये पीपीटी जो है वो वी कैन पब्लिश दिस पीपीटी इनटू द लिंक्डइन, तो आप लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। मैंने पीपीटी जो आपने बनाई थी वो इस जगह पे हम लोग देखते हैं डाउनलोड कैसे होके एमएस पावर पॉइंट फॉर्मेट में कैसे होती। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो पीपीटी है वो आपकी तैयार पावर पॉइंट में तैयार हो चुकी है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पीपीटी जो है वो हमने बनाई थी, इस जगह पे यूट्यूब वीडियोस भी है, लिंक भी आई, तो आप जैसे ही उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टूल्स है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया होता तो और ज्यादा मतलब वो कंट्रीब्यूटर के नाम भी इस जगह पे हमें दिखाई देती। किसी ने किया नहीं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इस जगह पे शेयर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, तो इस जगह पे क्या है कि जैसे मैं ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी आप काम करेंगे उसका रिपोर्ट्स भी आप लोगों के लिए इस जगह पे बनता है। जैसे इस जगह पे एनालिटिक्स ऐसे एक ऑप्शन है, थ्री डॉट्स दिखाई देते हैं इस जगह पे। एनालिटिक्स में जाते हैं तो एनालिटिक्स में पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कार्ड एंगेजमेंट, कितने लोगों ने कार्ड के कौन से इसमें देखा, कितने लोगों ने व्यूज किए, इन सब की डिटेल जो है वो आपको इस जगह पे दिखाई देती है। पेज को व्यूज कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने एडिट किया, सब जानकारी जो है वो आपको इस जगह पे एनालिटिकल फॉर्मेट में आपको दिखाई देती है। तो एक बहुत अच्छा टूल्स है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। डिटेल और ज्यादा डिटेल्स में मतलब बता सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और बेसिक बेसिक फीचर्स आपके लिए मैंने बताया।
अगेन जो नेक्स्ट टूल है वो बहुत अच्छा टूल्स जो है वो उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। आपको क्लिक करना है गूगल पे और इस जगह पे प्रेजी नाम का जो प्रेजी है इस तरह से आपको सर्च करना है। PREZ है prezi.ai प्रेजेंटेशन। सो ये जो लिंक दिखाई देते हैं इस जगह पे प्रेजी एआई प्रेजेंटेशन, इसको क्लिक करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप बहुत ही इंटरेक्टिव वेज में जाके पीपीटी बना सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं प्रेजी है। इस जगह पे हम लोग डायरेक्टली लॉगिन की तरफ जाते हैं, क्योंकि लॉगिन हर एक जगह के लिए लॉगिन करना आपको, और हर एआई टूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको पेड वर्जन में लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम मतलब कुछ चीजें जो है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द लॉग इन विद गूगल बटन और आपको आपका अकाउंट सर्च करना है। आफ्टर दैट आपका प्रेजी का जो लॉगिन जो है वो आपको इस जगह पे दिखाई देगा। इस प्रकार का क्रेजी का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो देयर आर टू बेसिकली टाइप्स tables. One button is a create with Prezi है और go to your dashboards। आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड में इसके पहले जो भी आपके पीपीटीज देखने हैं तो आप यू हैव टू क्लिक ऑन द गो टू डायरेक्टली डैशबोर्ड ऑप्शन। बट अगर आपको सीखना है तो क्लिक ऑन द क्रिएट विथ प्रेजी है। तो मैं क्रिएट विथ प्रेजी है के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये इसमें जितनी पीपीटी इंटरेक्टिव बनती है उसमें इतने बेहतरीन पीपीटी बनाने वाला कोई टूल नहीं है। तो गामा जो है वो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन प्रेजिस जो है वो बहुत इंटरेक्टिव वे में पीपीटी बना। सो आपको डायरेक्टली टाइटल डालना है। मैं डायरेक्टली टाइटल डालता हूँ, टाइप्स ऑफ वेदर और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन करता हूँ। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ये टॉपिक मैंने डाला है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपको डिस्क्राइब टॉपिक के बारे में करना है तो कर सकते हैं, इस जगह पे जाके अपलोड अ पीडीएफ फाइल। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई फाइल आपको मतलब पर्टिकुलर देनी है जिसके ऊपर ही प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप अपलोड पीडीएफ कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप दिस स्टेप्स करने हैं और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट जनरेटिंग प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजी के थ्रू बनाना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि के लिए प्रेजी जो है वो जनरेट आपके लिए पीपीटी बना रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि उसने ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शंस मींस फर्स्ट पीपीटी। फर्स्ट पीपीटी किसके ऊपर होगी तो एयर पोल्यूशन। उसमें क्या होगा तो उन्होंने दिया है डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ये सब उसने बताया। तो ये जो है वो पीपीटी वन स्लाइड के अंदर इंटरेक्टिव वेज में बनाता है। आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से बनाते हैं। आप पहले आपको इस जगह पे कलर प्लेटलेट्स है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, या इधर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके न्यू कलर्स को भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये क्लिक ये या इस तरह से, या हम लोग अभी रैंडमली कलर प्लेटलेट्स सिलेक्ट करते हैं। ये प्लेटलेट्स मैंने सिलेक्ट किया। इस जगह पे डिजाइन है, अगर आपको मोस्ट रिलेवेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल का रखना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या इस तरह से एक ऑप्शन आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि थीम की अरेंजमेंट करने के लिए थीम का जो ऑप्शंस है, मतलब या थीम किस बेसिस पे, ये देखने के लिए आप ऐसे कुछ पिक्चर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप इस तरह से कोई भी एक पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है जो कि मोस्ट रिलेवेंट विद द थीम्स होनी चाहिए। तो आपको इस जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर डिजाइन। तो मैंने एक डिजाइन सिलेक्ट की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे इटसेल्फ सिलेक्टेड डिजाइन। तो आपको अगर कुछ उनकी सिलेक्ट करने तो कर सकते हैं, और थोड़ा फील फील आने के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन द गो टू द एडिटर बटन। तो इस तरह से एक पीपीटी हमारे सामने उन्होंने तैयार की है। इस तरह से पीपीटी तैयार हुई है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हैं, नहीं करनी है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इसको इस जगह पे अगर अगर अब आपको चेंज करने हैं, टाइप्स टेक्स्ट बदलने हैं, स्टाइल्स बदलनी है, तो आप जैसे बैकग्राउंड अगर आपको बदलना है, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरह से बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली आप मतलब उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आपको बताना है तो बदल सकते हैं। इस जगह पे आपको पिक्चर्स सिलेक्ट करने तो कर सकते हैं।
सो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के ऊपर पीपीटीज कैसे तैयार हुए। तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन पीपीटी बना के तैयार हुई। ये पीपीटी जो है उसका इंटरफेस है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसके बाद देख सकते हैं आप आर्टिफिशियल, फर्स्ट जो टाइप्स है एयर पोल्यूशन, तो उसके बारे में दिखाया है। उस एयर पोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ द हेल्थ, और पिक्चर्स भी बहुत रिलेवेंटली, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉल्यूशंस फॉर रिडक्शन, और ग्लोबल स्टैटिस्टिक। उसके बाद एयर पोल्यूशन होने के बाद सडनली दे शिफ्टेड टू द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बाद आपको थोड़ा इम्पैक्ट करना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वाटर, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द मरीन लाइफ, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स। तो इस तरह से वेरी इंटरेक्टिव वेज में जाके आप थ्रू के थ्रू आप अलग अलग जो है वो आपकी पीपीटीज बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो इस इतने इंटरेक्टिव वे में जाके ये पीपीटी बनती है। आप बहुत सारे थीम्स है उसमें, आप रोड मैप बना सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स इस जगह पे आपको दिखाई देते हैं। अभी मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं इस जगह पे जाके आप अभी रिसेंटली दे स्टार्टेड, आप मतलब किसी के साथ शेयर कर, कोलेब्रेशन ऑप्शन उन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि गामा ने ऑप्शन दिया तो सब लोग गामा को यूज करते थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने भी दिया है, लेकिन अभी क्या है कि उसमें आप ईमेल आईडी के थ्रू आप कोलेबरेट कर सकते हैं। तो आप इस जगह पे ईमेल आईडी डालेंगे, कोई एक ईमेल आईडी डालेंगे तो हल्के किसी एक चैट बॉक्स में आप किसी कोई एक जन ईमेल आईडी डालो तो उनको वो लिंक आती है कि नहीं वो देख सकते हैं। कोई भी एक ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं आपका खुद का। Participants are requested to share your email ID. कोई भी एक जन ईमेल आईडी अपना शेयर कर सकते हैं तो कर सकते करो। प्लीज शेयर ईमेल आईडी, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर ईमेल आईडी। ओके, थैंक यू उत्तम जी। तो मैंने कॉपी किया, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ईमेल आईडी डालना है। जैसे ईमेल आईडी डालूंगा तो मुझे इस जगह पे ऑप्शन दिखा दे, कैन एडिट, कैन कमेंट और कैन प्रेजेंट। तो और उसको ऐड करेंगे तो आपको आया होगा, देखो इनविटेशन पेंडिंग इस जगह पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको आया होगा तो एक्सेप्ट कीजिए, तो इस जगह पे आप भी उत्तम जी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आपको रिक्वेस्ट आई होगी। जैसे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इनविटेशन पेंडिंग ऑप्शन जाएगा। दुबे वर्षन का इनको भी मैंने सेंड किया है। दोनों में से कोई भी एक जन आपको आया होगा तो इनविटेशन पेंडिंग इस जगह पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हो तो उस पीपीटीज में भी आपको जो भी चेंजिंग ऑप्शंस जो है वो आपको इस जगह पे दिखाई देगा। आपने एक्सेप्ट किया गया, तो अभी भी इस जगह पे पेंडिंग दिखा, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो उस पीपीटीज में जाके कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो उसमें जिनको लगता है कि इस डेफिनेशंस को बदलना है तो आप डेफिनेशंस बदल सकते हैं। इस जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आस्क एआई को अगर बनाना है तो फ्लो चार्ट चाहिए तो फ्लो चार्ट से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जैसे देख सकते हैं अभी इस जगह पे फ्लो चार्ट से ऐड किया। इस जगह पे पिक्चर चेंज करना है तो आप इस जगह पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं, या इस जगह पे हेडिंग डालनी है तो आप आस्क एआई के ऊपर करके मेक इट शॉर्टन, शॉर्ट्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंजेस इस जगह पे जाके कर सकते हैं। अगर उन्होंने पेंडिंग एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होती तो इस जगह पे उनका इनविटेशन, मतलब वो एडिटर फॉर्म में जाते हैं तो जो भी राइट्स है वो दोनों में डिवाइड होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऐसा टूल्स है, अगर आपको जब भी टाइम मिलेगा तो उसको आप देख लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें भी हैं, आप जब भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब गामा के बाद प्रेजी मैंने स्लाइड गो भी बहुत अच्छा टूल्स है, अगर आपको यूज करना है तो इट दे प्रोवाइडिंग प्री एंड प्रीमियम पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड टेम्पलेट्स।
अगर आपको जैसे हम लोग जनरली ये जो है वो गूगल स्लाइड जो है हम लोग यूज करते समय गूगल स्लाइड्स में डिजाइन जो है वो लिमिटेड डिजाइन है। अगर आपको गूगल स्लाइड्स में इनोवेटिव डिजाइन लाने तो स्लाइड गो के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करके आप गूगल में डिजाइन में एम्बेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्लाइड्स गो में मिलेंगे। ब्यूटीफुल एआई वाज वेरी एक्सलेंट टूल, वेरी वी कैन प्रिपेयर अ स्मार्ट प्रेजेंटेशन डिजाइन थ्रू ब्यूटीफुल एआई। अभी टाइम में स्पैन मेरे पास इतना नहीं, नहीं तो हर एक चीज मैं आपको बता देता। डेक्टो प्लस वाज अ वेरी एक्सलेंट टूल। अगेन डेक्टो प्लस इज अ एआई प्रेजेंटेशन बिल्डर। they suggest proper content related with the topic. They suggest or they select n number of layouts. They providing n number of design templates for us, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो these are the AI based presentations tool. Next topic is enhancing teaching and learning tools. So first of all, we will go directly go with Magic School. Magic School was very excellent tool for teaching learning purpose. तो सडनली हम लोग जाते हैं एंड क्लिक ऑन द मैजिक स्कूल बटन। सो अगर आप देखेंगे तो these are the magic school AI. These tools is very useful for teaching learning process. तो मैजिक स्कूल इस तरह से कि इंटरफेस दिखाई देगा आपको। डायरेक्टली साइन अप फ्री के ऊपर क्लिक करना है, साइन अप फॉर फ्री। आपको पूछा जाएगा कि you are a students or educator. Basically magic school is a very useful for the students or teachers also. So if your child is studying something in 8th 9th 10th 11th standard, so you have to um, purchase magic school for student purposes, for teaching learning purposes। और अगर आपको टीचिंग करना है तो आप डायरेक्टली क्लिक ऑन द एजुकेटर बटन, then click on the sign up with the Google, select your email ID। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो मैजिक स्कूल ये बहुत ही एक्सलेंट टूल है। आपको बहुत सारे काम जो है इस जगह पे दिखा करता हुआ दिखाई देता है। दीज आर दी टूल्स। अगर आप देखेंगे तो 150 के ऊपर टूल्स इस जगह पे दिखाई दे, मतलब 150 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड वर्क कैन डू मैजिक स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द प्लानिंग बटन। सो अगर आपको लेसन प्लान करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट लेसन प्लान। इमेज जनरेटर इज ए सिंपल टूल, सो आई कैनॉट सजेस्ट कि यू हैव टू यूज अ इमेज जनरेटर for magic through magic school। You can use a chat GPT also. So here is a grade level, so select your grade according to your convenience। आप कौन से स्टैंडर्ड के लिए, इवन वी कैन सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शन ऑल्सो देयर। तो आप कौन सा भी यूनिवर्सिटी अगर करते हो तो मैं 9th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। इस जगह पे आपको टॉपिक स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव लिखने। टॉपिक में सिलेक्ट करता हूँ ये जो डिफॉरेस्ट्रेशन के ऊपर हमें बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, या इस जगह पे अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन डिफॉरेस्ट्रेशन रिलेटेड होगी तो आप उससे रिलेटेड इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव के कुछ लिंक ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकेंगे तो भी चलेगा। या आपको अगर गेट हेल्प विद द प्रॉम्प्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे तो क्लिक ऑन द गेट हेल्प विद प्रॉम्प्ट असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको देख सकते हैं कि इम्प्रूव प्रॉम्प्ट। तो आपके लिए देखो क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लेसन ऑन द टॉपिक ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव की कॉन्सेप्ट एक्टिविटी एंड असेसमेंट मेथड्स। तो आप इस जगह एक्सेप्ट प्रॉम्प्ट करके आप इस जगह पे एक्सेप्ट प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। एडिशनल क्राइटेरियाज में अगर आपको देने तो आप दे सकते हैं कुछ एडिशनल, मतलब आपको अगर
ऐड एक्सपेरिमेंट, ऐसे अगर लिख रहा है एक्सपेरिमेंट ऐड करना है, इस जगह पे भी अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं समझ में आ रहा है, गेट हेल्प विद द प्रॉम्प्ट करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, तो इमीडिएटली वो प्रॉम्प्ट आपके लिए तैयार करके देगा। इंक्लूड एन एक्सपेरिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान, ऐसे कर इस जगह पे आपको स्टैंडर्ड लिखना है 8C। इस जगह पे मैं 9th B के लिए बना रहा हूं तो 9th B, और इस जगह पे जाके जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैजिक स्कूल जो है वो आपके लिए किस तरह से लेसन प्लान बना के दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लेसन प्लान आपके लिए तुरंत बना के दे रहा है। आप आपके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना के दे रहा है, एक जगह पे देख सकते हैं। इस जगह पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, असेसमेंट क्या कैसे होगा वो दिया है, की पॉइंट्स क्या होंगे इस लेसन के, ओपनिंग रिमार्क्स क्या देना है, इंट्रोडक्शन कैसे करने हैं, न्यू मटेरियल्स क्या होगा, गाइडेड प्रैक्टिस क्या करनी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कौन से मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर करनी है, क्लोजिंग रिमार्क क्या होगा, एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या होगी, होमवर्क दिया है, और स्टैंडर्ड अलाइन अगर ये सेम टॉपिक आपको 3 अलग अलग डिवीजन में देने हैं, तो क्या क्या मतलब अलाइनमेंट या काम वर्क जो दे सकते हैं। इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको इसमें एडिट करना है तो एडिट भी आप इसमें, आप जाके इसमें जो है वो डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड करके इसको सेव करेंगे तो ऐड भी हो जाता है। अगर इस लेसन प्लान को अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करके यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ये लेसन प्लान पढ़ने में दिल मतलब आता नहीं, तो रीड अलाउड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मैजिक स्कूल आपके लिए वो पढ़ के भी। Deforestation, understanding its impact and solution. Learning objective. Students will be able to explain the causes and effects of तो deforestation. आप देख सकते हैं आपके लिए वो पढ़ के भी बता रहा है। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं बना है तो आप रिप्लाई करके अलग तरह से बना के बोल सकते हैं। इस जगह पे मोर ऑप्शंस में जाके आपको मतलब सेव रिसोर्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे ही जैसे अगर आपको लगता है कि ये लेसन प्लान जो है उसको अलग अलग फॉर्मेट में करना है, तो इस जगह पे एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो इस जगह पे ट्रांसलेट बटन के ऊपर करना है। अगर आपको इस लैंग मतलब इस लेसन प्लान को आपको जैसे कि सपोज मैथिली भाषा में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इस जगह पे बटन दबाइए। ये लेसन प्लान सेम मैथिली भाषा में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस है, आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको उस लेसन प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक आइडियाज आपको आ जाएगी किस तरह से लेसन प्लान बना रहा है या बन रहा है। स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो, स्क्रीन No, शेयर? sir. No, sir. अरे बताना चाहिए ना आपने। हाँ अभी दिखाई दिया। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हैं कि आप इस जगह पे मैथिली भाषा में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इस जगह पे फिर आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट अगर आपको बताना है कि इस लेसन प्लान को आपको मराठी लैंग्वेजेस में करना है, तो आप मराठी लैंग्वेजेस में क्लिक करेंगे तो मराठी लैंग्वेज जो है वो उसमें भी हम आपके लिए ये सेम टॉपिक जो है वो कन्वर्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे लेसन प्लान को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मैजिक स्कूल जो है वो एम्बेड करता हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अभी इसी टॉपिक के ऊपर अगर मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लान मुझे चाहिए, तो इस जगह पे क्वेश्चंस करके आप, अभी इस जगह पे ऑप्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें अगर हम परचेस करते हैं या स्कूल के लिए बहुत सारे अपोर्ट मतलब फ्री सोर्सेस में दिया जाता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, लेंथ समराइज कर सकते हैं, कस्टम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अगेन प्लानिंग सेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए प्रेजेंटेशंस बना के देता है। यूनिट प्लान, जनरली यूनिट प्लान जो है वो मतलब 3 टॉपिक या 4 टॉपिक को लेकर वो यूनिट प्लान भी आपके लिए बनाता है। बहुत बार साइंस सब्जेक्ट के लिए 5E मॉडल बेस्ड लेसन प्लान तैयार करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का काम होता है। ये 5E मॉडल जो है वो आपको लेसन प्लान का मॉडल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करता है। जैसे 10 है ग्रेड, इस जगह पे आपको टॉपिक डालना है जैसे टाइप्स ऑफ सेल्स,
ये टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में है, और इसको गेट प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट भी आपके लिए लिख के देता है, एक्सेप्ट करना है। और इस प्रॉम्प्ट को उसने तैयार किए हैं। इस जगह पे अगर आपको हैंड ऑन एक्टिविटी, इस तरह से आप एक्टिविटी ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। इस जगह पे 10th बी के लिए बना रही है या सी के लिए जो भी, और इस जगह पे जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइंस सब्जेक्ट के लिए बच्चों को 5 बेस मॉडल बेस, जैसे कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, तो इस तरह से जो, और इवेलेट, तो ऐसे 5 के ऊपर, तो ये आपके लिए लेसन प्लान बना के ऑब्जेक्टिव दिया है उसने। अलग अलग एंगेज लेवल पे क्या करना है, एलेबोरेट लेवल पे क्या करना है, इवेलेट लेवल पे क्या, और अलाइनमेंट स्टूडेंट किस तरह से होगा वो भी उसने बता के दिया है। तो फिर सेम इसको हम लोग अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस जगह पे भोजपुरी भी लैंग्वेज दी है, मतलब बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को उन्होंने एम्बेड किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि भोजपुरी, तो भोजपुरी लैंग्वेजेस में भी आपको सेम टॉपिक जो टाइप्स ऑफ सेल्स है वो आपको कन्वर्ट करके देता है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आपके लिए वो भी बना के देता है। इसके बाद अब देखेंगे तो साइंस लैब रिलेटेड एक्टिविटी करता है। SEL, लेसन प्लान्स बना के देता है, रियल वर्ड करेक्शन, बहुत सारे काम, सिलेबस जनरेट भी करता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस जनरेट करना है तो आपके लिए वो सिलेबस भी जनरेट करके देता है। अगर आप टॉपिक डालेंगे तो टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस जनरेट करके देने के लिए बोला तो वो भी करके देता है। कंटेंट रिलेटेड आप जनरेट इमेजेस कर सकते हैं, वर्कशीट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत बार वर्कशीट तैयार करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है कि वर्कशीट कैसे तैयार करें। जैसे 4th ग्रेड के लिए अगर हेल्थ रिलेटेड मुझे, हेल्थ केयर रिलेटेड मुझे वर्कशीट जनरेट करना है, तो जनरेट बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वर्कशीट, जनरली वर्कशीट तैयार करने के लिए कितना टाइम जाता है, लेकिन वो हमारे लिए वर्कशीट भी बच्चों के लिए बना के देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट उन्होंने तैयार किया है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर यानी क्या उसके बारे में जानकारी दी है। फिर उसके ऊपर एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिए, वर्ड्स भी नीचे दिए गए, कौन सा वर्ड कहाँ सूट करता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए गए, आंसर की भी इस जगह पे दिए, कौन सा आंसर की भी दिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह वेज में जाके ये जो है वो आपके लिए बना के देता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कंटेंट भी आपके लिए जनरेट करके देता है। यूट्यूब वीडियो समराइज भी करके देता है। जैसे अगर हमने अभी रिसेंटली कोई भी एक यूट्यूब का अगर वीडियो है उसको समराइज करता है, मतलब बहुत कम शब्दों में। बहुत बार क्या होता है कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो जनरली देखो आप कोई भी जैसे जैसे ये पनामा कैनल के ऊपर खान सर का एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप जरूर इसको देख लीजिए जब भी टाइम मिलेगा तो ये वीडियो है, ठीक है। तो अभी बहुत बार क्या होता है ये अगर आपको किसी बच्चों को सिलेक्ट करना है, बच्चों को देखने के लिए भेजना है, बहुत बार ये होता है कि अ, हमें पता नहीं रहता है कि मतलब एग्जैक्टली जो हमने वीडियो जो है वो हम जिसको शेयर कर रहे हैं बच्चों को वो वैलिड है या नहीं है, या सच में कंटेंट रिलेटेड है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये समराइज करके बताते हैं, तो आप समराइज पढ़ के बच्चों को वो शेयर कर सकते हैं। इस जगह पे आपको पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ समराइज, एक पैराग्राफ में समराइज करना है 5 बुलेट पॉइंट में या 500 वर्ड। मैं इस जगह पे 500 वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ, और इस जगह पे आपको जो लिंक है उसको मतलब आपको पेस्ट करनी है और जनरेट बोलना है। तो जो भी खान सर का वीडियो है
access external content directly, including YouTube. If you could provide a brief description on the kick. ओके, तो हर एक ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी वीडियोस है वो हर मतलब जो कॉपीराइट वीडियोस है उसको वो ट्रांसक्रिप्ट करके या समराइज करके बताता नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो कॉपीराइट फ्री है, तो इसको करता है कि नहीं देखेंगे पहले Harder. हम लोग। बैक में जाते हैं, यूट्यूब वीडियो समराइज इस जगह पे जाके और इस जगह पे 500 वर्ड्स में और जनरेट। अभी ये भी वीडियो नहीं, तो जनरली कॉपीराइट फ्री वीडियो होगा तो वो आपके लिए समराइज भी करके बताता है। अभी इस जगह पे मतलब कॉपीराइट वीडियोस ढूंढना पड़ेगा आपको और फिर उसके बारे में जानकारी आपको बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। रूब्रिक्स जनरेट भी करता है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको दिखाया था, रूब्रिक्स जनरेट करके देता है। वोकेबलरी बेस्ड टेक्स्ट भी आपको मतलब एक्टिविटी देता है। चॉइस बेस्ड एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज आप इस जगह पे कर सकते हैं। क्वेश्चंस फॉर्मेट में आप जाएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको इस जगह पे ग्रेड सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी लेवल की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने चाहिए, 10 चाहिए तो 10, और आपको इस जगह पे टॉपिक डालना है। जैसे कि इरोजन के ऊपर मुझे बनाने हैं, जनरेट किया तो एक मिनट, क्वेश्चंस में जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। इरोजन ऐसे सर्च करना है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे लिए अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जो कि टीचर्स के लिए बहुत मतलब एट ए टाइम आपको क्लास जैसे आपका खत्म हो जाता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये बच्चों को शेयर कर सकते हैं। और इस जगह पे शेयर ऑप्शन है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आप इस जगह पे जाके कर सकते हैं। एक्शंस में जाके आप समराइज भी कर सकते हैं, कस्टम प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी। रीड अलाउड ऑप्शंस का भी इस्तेमाल Advanced geological process. कर सकते हैं। तो ये बहुत टीचिंग लर्निंग में ये बहुत ज्यादा यूजफुल ऐसा टूल्स हमें दिखाई देता है। लेसन प्लान बना सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं आप। यूट्यूब वीडियो को क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यही सेम टॉपिक को अभी हम लिंक को लेते हैं। अभी ये इस जगह पे जाके आपको सेम सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं 3 ही रखता हूँ और फिर मैं इस जगह पे सिलेक्ट करता हूँ जनरेट बोला। तो जैसे ही मैं जनरेट बोलता हूँ तो अब देख सकते हैं कि इस भी यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर जो पनामा लेक रिलेटेड है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना के दिए। क्वेश्चन बनाते समय कौन सा क्वेश्चन कब है उसका आंसर भी दिया है, कहाँ मिलेगा। 12 सेकंड के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 1 मिनट 45 सेकंड के ऊपर जाएंगे देखते हुए वीडियो तो उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 2 मिनट्स के ऊपर जाएंगे तो ये सब जानकारी जो है वो इस जगह पे आपको दिखाई देती है। तो ये भी बहुत अच्छा ऐसा टूल्स है जो कि बच्चों के लिए इनोवेटिव तरीके से हम लोग यूट्यूब वीडियो पहले वो देखेंगे और फिर उसके ऊपर ये एक बहुत अच्छा टूल है। सॉन्ग जनरेटर, बहुत बार क्या होता है कि आपको सॉन्ग जनरेट भी करके देता है। टीचर्स को लगता है कि मुझे टॉपिक सिखाना है, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं सॉन्ग से जनरेट करके बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो कुछ नहीं, आप कहीं भी कौन सा भी टॉपिक डाल के आप, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल जैसे सब्जेक्ट पे, और इसके ऊपर अगर आपको मतलब बनाना है, सॉन्ग बनाना है। अभी अभी तक किसी ने टाइप्स ऑफ एंगल के ऊपर सॉन्ग नहीं बनाया होगा, लेकिन इस जगह पे हम लोग बना सकते हैं। आर्टिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह के ऊपर का आर्टिस्ट का नाम मैंने सिलेक्ट किया। आप सोनू निगम जैसे कर सकते हैं, सोनू निगम। आपके पसंदीदा जो भी आर्टिस्ट है उसका नाम ले सकते हैं और जनरेट करना है। जैसे डिटेल्स ऑफ द इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स, सेम टॉपिक में ऐसे ही डालता टाइप्स ऑफ एंगल और इस जगह पे जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करना है।
तो अब देख सकते हैं कि एंगल ऑल अराउंड अस, इस जगह पे उन्होंने मतलब मैजिक स्कूल ने मेरे लिए सॉन्ग्स भी बना के दिए हैं। सॉन्ग्स में आप देख सकते हैं टू बी sung in the style of सोनू निगम melodic compositions। तो आप देख सकते हैं इसमें दिस सॉन्ग प्लेफुल कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सोनू निगम। अगर कौन ये भी बताता है कि सोनू निगम के कौन से सॉन्ग्स का इसमें ये लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्यूट एंगल ऐसे आप सॉन्ग्स भी जनरेट आपके लिए बना के दे रहा है, तो आप उसको लिरिक्स फॉर्म में बना के बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो जियो फ्राइडे रिव्यू गेम्स है, डाटा टेबल एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, बहुत सारे ऐसे काम वो करता हुआ दिखाई देता है। इंटेलेक्चुअल रिलेटेड मल्टीपल एक्सप्लेनेशन करता है, क्लियर डायरेक्शन देता है, असेसमेंट का टूल, बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। स्टूडेंट सपोर्ट्स, जैसे स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली मेल करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। लेसन प्लान, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से प्रोफेशनल ईमेल करना है, उसका आंसर कैसे देना है, तो ये सब जानकारी आपको इस जगह पे मिलेगी। कम्युनिटी टूल में आप देख सकते हैं कि सॉन्ग जनरेट का मैंने बोला, ये आपके लिए टीचर जोक जो है वो आपके लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर जोक भी बना के देता है। जैसे सपोज मुझे 10th 9th ग्रेड का क्लास है, और 9th ग्रेड के क्लास के लिए मुझे अगर टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के ऊपर मुझे बनाना है, जो कि जोक्स बनाना है, तो जनरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे क्लास में रिमरस लाने के लिए बहुत सारे ऐसे जोक्स भी वो प्रोवाइड करके देता है, जिसमें बच्चों का इंटरेक्शन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो। मैजिक स्कूल कैन प्रोवाइड देन प्रिपेयर टीचर जोक्स आल्सो। तो इतना बहुत सारा मल्टीपल वे में जाके वो आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देता है। आप लेटर प्रिपरेशन कैन डू by using magic school, team building, ice break activity, we can conduct ice breaking activity, team building activity थ्रू मैजिक स्कूल। सो इट वाज अ वेरी एक्सलेंट टूल। आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, स्कूल्स के लिए भी ले सकते हैं, और कॉलेजेस के लिए। ये बेसिकली जो मैजिक स्कूल है वो सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं, बहुत एनी वन कैन यूज मैजिक स्कूल। आप इस जगह पे टेस्टिमोनीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग वर्ल्ड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनीज आप पढ़ लीजिए, ये बहुत सारे टेस्टिमोनीज है जो कि लाइव टीचर्स अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में बहुत रेयरली, मतलब बहुत सारे लोगों को ये टूल्स के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसे भी कोई टूल है, लेकिन आप देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में इतने लार्ज स्केल पे हर एक स्कूल ने उसको परचेस किया है। आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इसको परचेस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसे होगा कि जो आपके लिए मतलब मैजिक स्कूल्स आपने मतलब आपके लिए प्रेजेंटेशंस किया है किसी ने, तो मैजिक स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप एड एड एडुएड एआई जो टूल है वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो टूल है वो एक एडू का प्ले नाम का एक एप्लीकेशन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से गेम्स है। आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये इसमें फ्रॉगी जेम नाम की गेम है। आप अ, जैसे आपको तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से एक मतलब टॉपिक दिया जाता है, और अगर आप उसका आंसर देते हो परफेक्टली तो नेक्स्ट टाइम पे फ्रॉगी तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप गलत आंसर देते हो तो आपको पॉइंट नहीं मिलते। तो फिर वो आपको व्हाट एनिमल मेक्स दिस साउंड, मतलब सही आंसर देते रॉन्ग आंसर देता है तो व्हाट एनिमल इज सो थॉट दैट इज कैन बी इवन सर्वाइव, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपके स्कोर वगैरह रैंडम इस तरह से बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आप एडू का प्ले के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ आपको एन नंबर ऑफ एक्टिविटी, वीडियो क्यूज है, डायलॉग है, डिक्टेशन, स्लाइड शो, मैचिंग द पेयर, मैप क्विज, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए यूजफुल ऐसा टूल है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में अगर देखा जाए तो ये एडू एड कैफे नाम का एक है जो कि लेसन प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ऐसा टूल है। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं थ्रू एड कैफे।
ट्वी नाम का जो है वो वी कैन प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस, रीडिंग राइटिंग गेम्स. डिफिट इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर लैंग्वेज टू टीचर स्पेशली. टू टीच वाज अ वेरी एक्सलेंट टूल. मतलब अगर टाइम होता तो मैं जरूर आपको ये बता देता. टू टीच है, एडुएड है, विच इज सिमिलर टू द मैजिक स्कूल. सो दीज आर दी वेरी इफेक्टिव एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग बेस्ड टूल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लेसन प्लान रिलेटेड करना है तो Almanac is a very excellent tool. Curified, Brick Teaching, EduAid AI, Magic School, Defeat, Twi. These are the very excellent tools for preparing the lesson plan. उसके बाद अगर आपको आपको स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना है तो अगर आपको आपके स्पीच को अलग अलग लैंग्वेजेस में डेवलप करना है तो आप 11 लैब्स का इस्तेमाल कीजिए. स्पीचिफाई है, नेचर रीडर्स है, लो स्पीच जनरल, मर्फ वाज वेरी एक्सलेंट टूल. आप 200 वॉइसेस उसमें दिए हैं आपको ऑप्शन. रिजेंबल्स है, तो ये आप टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना है, टेक्स्ट में आप लिखेंगे और फिर उसको इमेज में कन्वर्ट करना है तो मिड जर्नी वाज वेरी एक्सलेंट टूल. आप मिड जर्नी के थ्रू एआई बेस्ड वीडियोस भी बना सकते हैं. डेल एआई, प्रीफिक्स, लियोनार्ड एआई, डीप एआई, बिंग, फ्लोटर, नाइट कैफे वाज. दीज आर दी टेक्स्ट टू इमेज बेस्ड टूल्स. आप उसको देख लीजिए क्योंकि टाइम अभी कम है. ये है वीडियो टूल्स. अगर आपको टेक्स्ट एआई बेस्ड वीडियो जनरेट करने के लिए तो सबसे पहला तो लियोना इन वीडियो डॉट ए, जैसे मैंने रिसेंटली उसको यूज किया है, बहुत अच्छा वीडियोस बनते हैं. सिंथेसिस या लुमेन 5, ये बहुत अच्छा है. मतलब अगर आपको कन्वर्ट ब्लॉग्स और टेक्स्ट वो वीडियो में कन्वर्ट करता है. पिक्टोरी वाज वेरी एक्सलेंट टूल. विडनोज, ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसमें 50 to 60 सेकंड तक हम लोग फ्री वीडियोस बना सकते हैं. सोरा अभी रिसेंटली इंडिया में अभी तक नहीं था, पर 4-5 दिन पहले मैंने चैट जीपीटी पे देखा कि आप सोरा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पेड वर्जन में. पर सोरा से आप 3 आवर्स की एनिमेटेड वीडियो, मतलब मूवीज बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से देने पड़ेंगे. क्लिकी है, वीड नाम का एक बहुत अच्छा एआई टूल है जिसको वीडियोज में कन्वर्ट आप कर सकते हैं. अगर आपको एकेडमिक सर्च इंजिन में अगर देखना ही है कि बेस तो कनेक्ट पेपर्स, रिसर्च रैबिट, स्किट, इसके लिए मतलब ये सभी टूल्स के लिए 1-1 घंटा जाता है. मतलब इसके लिए टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए. लेकिन आप ये उसके नाम ध्यान में, स्किट है, डिस्कवरीज है, इलेक्ट सेकंड्स है, परप्लेक्सिटी है, सिमेटिक स्कॉलर है, जो कि रिसर्च के लिए यूजफुल ऐसे एआई बेस्ड टूल्स है. इसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं. इन वीडियोस को मतलब जो भी आप मतलब कोई भी एक प्रॉम्प्ट को लेकर आप वीडियो में भी एआई के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बहुत अच्छा ऐसे ऑप्शंस हैं. आप अगर आपको मतलब अगर और जानकारी चाहिए तो मैं मेरा चैनल है उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बहुत सारे यहाँ जितने भी टूल्स बनाए हैं वो टूल्स आपको उस जगह पे देखने को मिलेंगे. अभी टाइम्स कम है, सिर्फ मैं यही रुकता हूँ. ओवर टू मैडम. हेलो. Thank you, sir, for this innovative session. Now I would like to request Varsha Kumari ma'am to deliver the vote of thanks for today's program. Thank you, ma'am. Good evening to everyone present here. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for today's enlightening online faculty development program on the theme Emerging Scenario of Indian Teacher Education in the Light of NEP 2020. This session has truly been a valuable